start with the coal. ठीक है, let's start with the formation of coal. तो it's very simple phenomena. ठीक है, you might have knowledge about it. With respect to coal and petroleum and natural gas, तीनों साथ में लेके चलते हैं. All right. So with respect to coal, you know that millions of years ago there used to be you can say कि the earth was covered with a lot of flora and fauna. ठीक है, so dead and decay, when these flora and fauna died, that means you can say dead and decay flora and the fauna, dead and decay flora and the fauna gradually converted, or you can say कि it gradually covered by the layer of the soil. ठीक है, and it gradually converted into the coal because of intense pressure and temperature in the absence of the air. Clear? For example, you can say कि I'm talking about the land अभी. ठीक है, so on the land, because of the dead and decay flora and fauna means ki trees, animals, etc. When they died, they buried in the earth, and gradually the layer of soil covered those dead and decay matter. ठीक है, so after millions and millions of the year, they decomposed, all right, in the absence of air. ठीक, and with intense pressure and temperature, it gradually converted into coal. It gradually converted into coal. ठीक है, simple phenomena for how formation of coal. Same, let me repeat it on the same phenomena in the ocean. With the same phenomena will be repeated in the oceanic bed. ठीक है, तो under the ocean, this is your oceanic bed. I hope you understand the term oceanic bed. I hope you understand the term oceanic bed. The floor of the ocean, all right, the floor of the ocean is called oceanic bed. ठीक है, तो let's suppose कि flora and fauna died, तो the dead remains of the flora and fauna gradually they fall on the oceanic bed. ठीक है, and layers of soil, it got covered with the layers and layers of soil, and because of the intense pressure and temperature, gradually it converted into petrol and natural gas. तो सिंपल सा फिनोमिना है आपका फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोल एंड गैस का. ठीक है, and this is the reason why we call these resources as the non-renewable energy resources, because they are exhaustible in nature. ठीक है, once not now, but because the formation of these type of resources took millions and millions of years, and they are limited in our nature, and consistently because of the overbulging population, we are consistently using it, or you can say extracting them, ठीक है, unsustainably. That's why you can say कि by now or then these resources might got you can say vanish. All right, so these are your resources, coal and petrol and natural gas, the formation of resources. ठीक है, अच्छा, with respect to formation of coal, now if I talk about the coal, so there are two category of coal. One coal, especially I'm talking about the India, one coal you will get in the Gondwana period, and the another type of coal you will get in the tertiary period. ठीक है, majorly there are three type of coals. ठीक है, so in the millions of year, the number one is carboniferous, the number one is Gondwana period. All right, so there are two type of coal present in India. One is Gondwana and another is tertiary. Gondwana and tertiary. All right, the name itself, that is Gondwana and tertiary, it signifies कि how old is the coal. How old is the coal, that means कि जैसे मैंने आपको फॉर्मेशन बताया यहाँ पे, the formation of coal, ठीक है,
सो दीज डेड एंड डिके फ्लोरा एंड फौना, ठीक है, उनका टाइम पीरियड क्या रहा होगा, हाउ ओल्ड दे आर, ऑन दैट बेसिस वी कैन कैटेगराइज कोल इनटू गोंडवाना एंड टर्शियरी. ऑलराइट, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट we have 4 categorization of the coal. Number 1 is anthracite, bituminous, lignite and peat. ठीक है, so there are 4 category of coal: anthracite, bituminous, lignite and peat. ठीक है, this coal is the highest category of coal. Now how we are categorizing the coal? On the basis of percentage of carbon. On the basis of percentage of carbon, that means ki the coal which is superior in the quality will have high carbon content, low sulfur content, all right, and low moisture content. High carbon content, low sulfur content, low moisture content. ठीक है, on the basis of it we can categorize the coal into 4 different part. All right, good evening Guru. I think you are joining after a long time. मैंने आपको देखा नहीं जब से क्लास स्टार्ट हुई है इंडियन ज्योग्राफी की. Anyhow, so with respect to these 4 type of category: anthracite, bituminous, lignite and peat. So on the basis of it, इस तरीके से carbon content will be decreasing, sulfur content will be increasing, उल्टा हो गया यार, carbon content increasing, sulfur content decrease, सॉरी यार क्या बना रही हूं मैं, सल्फर कंटेंट डिक्रीजिंग. ठीक है, दैट मीन्स कि एंथ्रासाइट में यू विल हैव अबाउट 70 to 80% ऑफ कार्बन. ठीक है, सल्फर इज लोवेस्ट इन एंथ्रासाइट, मॉइस्चर कंटेंट इज ऑल्सो 0 to 10%. ठीक है, फिर इन बिटुमिनस कोल यू विल बी गेटिंग 60 to 70% ऑफ द कार्बन, 60 to 70% of the carbon, low moisture content and low sulfur content. Then after lignite you will be having further 40 to 50% of the carbon, further high sulfur content and high moisture content as comparison to bituminous coal. Then peat, roughly 30% of carbon and high moisture content and high sulfur content. ठीक है, ये आपका कैटेगराइजेशन हो गया. विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, मैक्सिमम कोल वी प्रोड्यूस और रिजर्व वी हैव इज ऑफ बिटुमिनस कोल. वी आर हैविंग बिटुमिनस कोल. ठीक है, वी डोंट हैव एंथ्रासाइट वी हैव बट इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली. एंथ्रासाइट का जो रिजर्व है वी हैव इन जम्मू एंड कश्मीर ओनली. ठीक है, बिटुमिनस कोल है हमारे पास, दैट इज इन सफिशिएंट क्वांटिटी. ठीक है, वी डोंट नीड टू इंपोर्ट बिटुमिनस कोल, बट स्टिल till date we are heavily reliant on the import of coal of anthracite. ठीक है, we are heavily reliant on the import of the coal, like for example anthracite coal. Why? The reason is कि anthracite coal is also called as, it is also called as metallurgical coal.
metallurgical coal. What is metallurgical coal? Simply these type of coal can be used in the industries. In the industries, for example, iron and steel. For example, iron and steel. Clear? Any doubt till here? किसी कोई डाउट? सब आ गया समझ? हैं जी? समझ आ रहा है? अच्छा, कोई मेघालय से भी है ना? कोई तो था शायद. अच्छा नहीं, मेघालय से नहीं हो कोई. मेघालय में अभी वी विल बी डिस्कसिंग वो रैट होल माइनिंग, शायद आपने सुना होगा. स्पेशली जो स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द मेघालय, उनने शायद सुना भी होगा, विटनेस भी किया होगा शायद रैट होल माइनिंग. दैट आई विल बी डिस्कसिंग इट. ठीक है, ओके. तो कोल ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड. ठीक, अब आगे बात करते हैं द यूज ऑफ कोल. देखिए और पीपीटी में क्या है तुम लोग का. अच्छा, कुछ कोल डिपॉजिट देख लीजिए. कोल डिपॉजिट आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट कोल डिपॉजिट मगअप करना पड़ेगा. ठीक है, कुछ कोल डिपॉजिट मगअप करने पड़ेंगे आप लोग को. एंड बिकॉज इन प्री एंड विद रिस्पेक्ट टू मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू प्री एंड मेंस दोनों में क्वेश्चंस आते हैं. जो आपका कोल माइन है या फिर कोल रिजर्व है उससे रिलेटेड. ठीक है, तो टर्शरी कोल आपको मेनली मिलेगा आसाम और मेघालय वाले रीजन में. कुछ कोल डिपॉजिट का नाम याद कर लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इन आसाम एंड मेघालय रीजन, मिकीर हिल के पास यू विल बी गेटिंग फ्यू कोल रिजर्व्स. ठीक है, एक तो याद रख लेना, नईवेली तमिलनाडु में. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लिग्नाइट डिपॉजिट. lignite coal you will be finding here. Lignite coal is tertiary coal. Lignite coal is tertiary coal. ठीक है, ये आपको तमिलनाडु वाले रीजन में मिलेगा. ये कुछ सारे तो याद नहीं कर सकते तुम. ठीक है, सारे याद करने की जरूरत भी नहीं है. कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रीजन्स जस्ट ट्राई टू मग अप. ठीक है, फिर विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो 3 मेजर आपके स्टेट्स हैं, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड टू फ्यू एक्सटेंट वेस्ट बंगाल. ये 4 मेजर स्टेट्स में यू विल बी गेटिंग गोंडवाना टाइप ऑफ कोल. यू विल बी गेटिंग गोंडवाना टाइप ऑफ कोल. दैट इज, एंड यू कैन से कि टाइम पीरियड जो है उस कोल का, दैट इज यू कैन से पुराना जो उसका एज है. ठीक है, वो होगा. और here you will get bituminous coal. Bituminous coal you will be getting in these 4 states. कौन कौन सा? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल. These are the 4 major coal producing state. झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल. ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल. विद रिस्पेक्ट टू झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये 2 स्टेट्स ऐसे हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़. झारखंड एंड छत्तीसगढ़, हियर यू विल गेट आयरन रिजर्व ऑल्सो. इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़ सेम बेल्ट में वेयर यू विल गेट कोल रिजर्व्स, सेम बेल्ट में यू विल गेट आयरन रिजर्व्स ऑल्सो. ठीक है, इन 2 स्टेट्स में आपको दोनों चीजें मिलेंगी, आयरन रिजर्व्स एंड कोल रिजर्व्स. ठीक है, तो ये मेजर 4 स्टेट्स हैं. अब इन मेजर 4 स्टेट्स से अक्सर आपका एग्जाम में नाम आ जाता है कि विच आर द कोल माइन विच यू विल बी गेटिंग हियर. ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू वेस्ट बंगाल, रानीगंज और बानकुरा, ये 2 याद रखिएगा. रानीगंज इज मोर इंपॉर्टेंट, रानीगंज एंड बानकुरा. ठीक, फिर आके जब आप, ये बिहार नहीं है, झारखंड होगा.
झारखंड, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू झारखंड, झरिया, बोकारो, चंद्रपुरा, रामगढ़। झरिया माइन, बोकारो माइंस, ठीक है। उसके बाद आपका रामगढ़ और चंद्रपुरा, ये आपका 4 इंपॉर्टेंट कोल माइंस इन झारखंड। देन राजमहल हिल, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कोल माइन रीजंस, ठीक है। फिर आपका है हजारीबाग और पालामाऊ। हजारीबाग एंड पालामाऊ, अगर आप लोग कभी गए होंगे बिहार तो कुछ एरियाज माइट बी नोन आपका, डाल्टनगंज और औरंगाबाद ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये कुछ एरिया स्पेसिफिक आप याद रखिएगा, हजारीबाग, पालामाऊ, राजमहल, झरिया, बोकारो, ठीक। दीज आर द इंपॉर्टेंट कोल माइंस। फिर नॉट रिक्वायर्ड, इसमें इतना ज्यादा है भी नहीं, बाकी सब कुछ स्टेट्स में है, थोड़े बहुत कोल माइंस हैं हर स्टेट्स में, बट उतना यू कैन से कि एक्सट्रैक्ट गवर्नमेंट वहां पे करती नहीं है, बहुत ज्यादा एक्सप्लोरेशन वहां पर है नहीं, ठीक है। तो नॉट रिक्वायर्ड। देन विद रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़, झारखंड इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर, ठीक। मेजर कोल फील्ड का नाम याद रखिएगा, झरिया, बोकारो, रामगढ़, राजमहल, हजारीबाग, डाल्टनगंज, वो उसी में आ गया, हजारीबाग में आ गया ये। देन विद रिस्पेक्ट टू छत्तीसगढ़, कोल माइन याद रखिएगा, कोरबा, टाटापानी और सोनहत। कोरबा, तातापानी एंड सोनहट, दीज आर द इंपॉर्टेंट कोल माइंस ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक। देन आफ्टर उड़ीसा इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मेजर कोल फील्ड, तालचर फील्ड, मेजर कोल फील्ड, तालचर फील्ड। देन मध्य प्रदेश में कुछ नहीं यार, मध्य प्रदेश तो फेमस जगह आपका, और वेस्ट बंगाल का है आपका रानीगंज, ठीक है। सो दीज आर इंपॉर्टेंट कोल माइंस जो आपको याद रखने हैं, क्लियर, ठीक है। फिर टर्शरी कोल, ये आपका गोंडवाना था। 4 मेजर स्टेट्स जो हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, इन दीज 4 स्टेट्स यू विल बी गेटिंग गोंडवाना कोल, और गोंडवाना कोल ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी। विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी वी यूज गोंडवाना कोल, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रीज पर्पस गोंडवाना कोल, दैट टू बी मोर स्पेसिफिक, बिटुमिनस कोल, ठीक है। फॉर इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील, वी यूज एंथ्रासाइट कोल, दैट वी इंपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल चाइना, ठीक है। दैट वी इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज, एंथ्रासाइट कोल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, क्लियर। बिटुमिनस कोल भी हम लोग यूज कर सकते हैं इन इंडस्ट्रीज, बट फॉर दैट वी हैव टू कन्वर्ट बिटुमिनस कोल इनटू एंथ्रासाइट कोल। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आपको उसको मतलब कोकिंग कोल में यू हैव टू कन्वर्ट बिटुमिनस कोल। कोकिंग कोल मीन्स की यही एंथ्रासाइट कोल जो कि वी यूज इन द इंडस्ट्रीज। सो टू कन्वर्ट बिटुमिनस कोल इनटू कोकिंग कोल, वो फिर वो जो प्रोसेस है दैट इज मोर एक्सपेंसिव। तो हम लोग जो है, और हमारे पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी इतना यू कैन से कि एडवांस नहीं है, दैट्स व्हाई वी इंपोर्ट कोल फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर अवर इंडस्ट्रियल यूज। ऑलराइट, क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? Okay.
ग्रीन रिवल अरे अच्छा हाँ यार, ग्रीन रिवोल्यूशन चल रहा था ना लास्ट क्लास में, सॉरी मैं भूल गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन चल रहा था, कहाँ तक हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन? आई थिंक फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हो चुका था क्या? फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया था क्या? अच्छा मैं ये फटाफट कंप्लीट कर लेती हूँ, कोल एंड पेट्रोलियम ये डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टाइम बचता है तो फिर हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन बाकी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जस्ट डू लेट मी नो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थिंक आई हैड कंप्लीटेड फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, शायद उसका प्रोज एंड कॉन, एनी हाउ आई विल रिवाइज द होल टॉपिक। अच्छा ठीक है, ओके तो अभी आधे घंटे बाद याद दिला रहे हो, कोई बात नहीं। अभी आफ्टर दिस कोल एंड पेट्रोलियम मैं अभी ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरू करूंगी, ठीक है, मतलब ब्रीफली आप लोग को बता दूंगी। Okay, so with respect to tertiary coal, majorly you will get these type of coal in the Assam region, Meghalaya region and Tamil Nadu region, ठीक है, and Tamil Nadu region। तो इसमें तो याद सारा करने की जरूरत नहीं है, एक आप ये मिकीर हिल्स याद रख लेना एंड बस बहुत है यार, कितना याद करोगे, इतना काफी है। फिर ये तमिलनाडु वाला वो नेवल वाला रीजन याद रख लेना, और तो इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड, बाकी इतना कुछ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक, ओके। ठीक है, अच्छा नाउ कोल इज एन इम्पॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स, ठीक है। डिस्पाइट द कंटिन्यूअस यू कैन से कि जो मोदी जी गए थे ग्लासगो समिट में एंड देन वी हैड अ लॉट ऑफ कमिटमेंट्स कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, ये कर देंगे, ये यहाँ से ये हो जाएगा, मतलब मोदी जी बोलते रहते हैं ना, वो बोलते बोलते ना उनके में फ्लो में निकल जाती है चीजें कि हाँ हम ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, तो वो सारी चीजें कमिटमेंट जो रहती है हमारी गवर्नमेंट की, ठीक है, उस रिस्पेक्ट में अगर हम देखें, इन दैट रिस्पेक्ट वी आर स्टिल वे बिहाइंड। हालांकि वी हैव गॉन फर्दर विद रिस्पेक्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस, ठीक है, द गवर्नमेंट हैव यू कैन से कि कमिटेड कि वी विल बी नेट जीरो बाय 2070, ठीक, बट टिल डेट वी डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट प्लान ऑन द व्हाइट पेपर फॉर नेट zero. You know what is net zero, right? Net zero means कि whatsoever we are whatsoever carbon emission we are having, ठीक है, इक्वली कार्बन एमिशन जितना होगा इक्वली कार्बन जो है वो अब्सॉर्ब भी हो जाएगा, अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज नेट जीरो? कार्बन एमिशन is equals to absorption. फॉर एग्जाम्पल आपके पास इतना यू कैन से फॉरेस्ट रिजर्व हो, ठीक, और यू कैन से कि लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी हो कि व्हाटसोएवर कार्बन वी आर प्रोड्यूसिंग थ्रू इंडस्ट्रीज और बाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ठीक है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगा ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस्ड, whenever there will be industry, whenever there will be vehicular emission, कार्बन डाइऑक्साइड विल बी देयर, ठीक है, तो ये हमारा एमिशन हो रहा है। अब उसको एब्जॉर्ब कैसे होगा वो, इधर वी शुड हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो करके, ठीक है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए और कार्बन डाइऑक्साइड ना एमिशन हो ही ना, पहली बात तो, और हो भी तो उसको जो है इस तरीके से कन्वर्ट किया जाए कि वो हमारे लिए हार्मफुल ना हो, ठीक। और व्हाट वी कैन डू इज कि वी शुड हैव दैट मच फॉरेस्ट रिजर्व जो कि एब्जॉर्व कर ले कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो ये नेट जीरो का हमारा टारगेट है 2017 का, बट टिल डेट वी डोंट हैव एनी सिग्निफिकेंट प्लान ऑन द व्हाइट पेपर टू अचीव दिस। ठीक,
achieve this. All right. So till date we are heavily relying on coal, approx 60 to 70% with respect to electricity generation. With respect to electricity generation, we are still heavily dependent on it. ठीक है, वो हाइड्रो पावर वगैरह बोलोगे आप लोग, हाइड्रो पावर है, सोलर एनर्जी है, तो दैट व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग दैट टॉपिक ना, तो आई विल बी टेलिंग यू द एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर कि कितना परसेंटेज है, बहुत कम है. ठीक है, 60 to 70% वी आर रिलाइंग ऑन कोल टिल डेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी. बाकी का जो 30% है, 30% में आपका बाकी का जो 30% है, उस 30% में वी हैव हाइड्रो, ठीक, वी हैव स्मॉल हाइड्रो, वी हैव सोलर, विंड, ठीक है, और न्यूक्लियर. ठीक है, ये आपका बाकी का 30% है. 60-70% कोल है. नाउ व्हाट इज द इशू विद द कोल? लास्ट ईयर शायद आपने सुना होगा कि कोल का शॉर्टेज हो गया था एट द टाइम ऑफ कोविड. सुना था? कुछ याद है आप लोग को? कोविड में कहाँ थे आप लोग? कोविड में कहाँ थे? पेपर कुछ देख रहे थे? यार पेपर ना सिर्फ ऐसा नहीं कि बस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ही पेपर पढ़ना जरूरी है. ठीक, पेपर वैसे भी पढ़ना चाहिए, पेपर आप लोग को वैसे भी पढ़ना चाहिए, और दैनिक जागरण नहीं पढ़ना चाहिए. ठीक है, ठीक है, हिंदी मीडियम वालों को तो उनके लिए तो दैनिक जागरण ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि और कोई पेपर है नहीं. जनसत्ता थोड़ा बहुत ठीक है, बट हाँ, फॉर इंग्लिश मीडियम आप वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और नॉट, गो थ्रू इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू. ठीक है, क्योंकि दीज न्यूज पेपर्स आर फॉर इन्फॉर्म्ड सिटीजन. वरना दैनिक जागरण में तो यार कुछ भी दे देते हैं, है ना. इसकी बीवी उसके साथ भागी, इसके बच्चे उसके साथ भागे, यही सब आता है दैनिक जागरण में. तो हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस आर स्टेटस सिंबल फॉर इन्फॉर्म्ड सिटीजन. ठीक है, तो इसका प्रिपरेशन से कोई लेना देना नहीं है. उसको थोड़ा सा पढ़िए, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू. तो आप मुझे बताइए, कोविड के टाइम पे आइडिया है आपको, गवर्नमेंट ने हमारे यहाँ कोल का क्या बोलते हैं, क्वांटिटी सफिशिएंट नहीं थी फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. कोविड के टाइम पे ऐसा हो गया था, ये कोयला खत्म हो गया, ऐसा त्राहिमाम हो रहा था. हाँ जी, कुछ याद आ रहा है? थोड़ा मगज पे जोर डालो, कुछ याद आएगा. यार तुम लोग थोड़ा कुछ ना बोलते रहा करो, मैं ऐसे बोर हो जाती हूँ फिर पढ़ाते फिर मन इच्छा नहीं होती. इंपोर्ट शॉर्टेज कह सकते हो. मैं यहाँ पे बिटुमिनस कोल की बात कर रही हूँ, एंथ्रासाइट कोल की नहीं. हम लोग इंपोर्ट करते हैं मेनली एंथ्रासाइट का. कभी कभी होता है सम टाइम ओनली कि वी ऑल्सो इंपोर्ट बिटुमिनस कोल, क्योंकि वो भी हमारे पास शॉर्टेज हो जाती है. वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोल ऑल्सो. सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वो तो ठीक है, वो तो हम हैं. सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर वी आर because thanks to our bulging population, जो कि 2070 तक हम लोग जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलस नेशन हो जाएंगे ग्लोबली. ठीक है, वी विल सरपास चाइना. ठीक, वी विल सरपास चाइना विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन. तो उस टाइम पे क्या हुआ था, कोविड के टाइम पे देयर वर कोल शॉर्टेज. तो यस, इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी थी हमें उस टाइम पे.
दैट वाज बिकॉज हमारा जो माइनिंग है, ठीक है, हमारा एक तो यार हमारे यहाँ कमर्शियल माइनिंग बहुत ज्यादा नहीं है. कमर्शियल माइनिंग एज इन सी द माइनिंग ऑफ द कोल वाज नेशनलाइज्ड इटसेल्फ इन 1973. नेशनलाइज का मतलब ये हुआ कि ऑल द माइन्स कम्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, नाउ गवर्नमेंट विल बी टेलिंग यू कि हाउ मच कोल टू माइन एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू सेल इन द मार्केट. ठीक है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, बट फॉर आप कह सकते हैं कि उनके पर्सनल यूज के लिए. पर्सनल यूज एज इन लेट्स सपोज देयर इज अ वन इंडस्ट्री, वो गवर्नमेंट से चाहती है कि हमें कोई एक माइन एलोकेट कर दिया जाए. ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक माइन एलोकेट कर दिया उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, लेट्स सपोज XYZ. ठीक, दैट इंडस्ट्री इज एक्सट्रैक्टिंग कोल फ्रॉम दैट पर्टिकुलर माइन फॉर इट्स पर्सनल यूज. दिस आई एम टॉकिंग प्रायर टू 1991. ये 1991 के पहले की बात कर रही हूं मैं. ठीक है, दिस इज प्रायर टू 1991. बिफोर दिस, व्हेन देयर वाज नो LPG इन इंडिया, लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था उस टाइम पे, ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ था. When there was no LPG, liberalization, privatization and globalization, at that point of time, majorly all the mines were under the control of the government after the nationalization of the mine in 1973. ठीक, फिर क्या हुआ, गवर्नमेंट ग्रेजुअली ओपन द कमर्शियल माइनिंग. कमर्शियल माइनिंग तो अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है इन 2020 itself. In 2020 itself, government had started the commercial mining. Commercial mining as in की opening the mines for the private players. कि अब auction होगा mines का और private players भी आएंगे. They will participate in the auctioning process और फिर वो जो है mining को वो जो है क्या बोलते हैं, extract करेंगे कोल को. ठीक है, तो वो हमारा अभी स्टार्ट हुआ है 2020 में, उसके पहले नहीं था. ठीक है, अच्छा, नाउ व्हाट इज द इश्यू विद द कोल माइनिंग? व्हाट इज द इश्यू विद द कोल माइनिंग? फर्स्ट, इट इज एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव क्यों है कोल माइनिंग? ये आप देखिए, एक मिनट, कहाँ गया? दिस इज योर ओपन कास्ट माइनिंग. This is open cast mining. ठीक है, ऐसी माइनिंग होती है इंडिया में. एक बड़ा सा फील्ड होगा, माइनिंग स्टेट गवर्नमेंट करता है या सेंट्रल के अंडर रहता है माइनिंग. माइनिंग मेजर जो मिनरल्स होंगे उसका माइनिंग का कंट्रोल विल बी अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको. सारा चीज सेंट्रल गवर्नमेंट डील करता है. ठीक है, कुछ एक आध केसेस, कुछ जो माइनर मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल्स, फॉर एग्जांपल सैंड माइनिंग हो गया. ठीक है, तो सैंड माइनिंग कम्स अंडर द स्टेट गवर्नमेंट. जो मेजर मिनरल्स है हमारे, कोल हो गया, गोल्ड हो गया, ऑल दीज मिनरल्स विल बी कमिंग अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, फिर इसमें भी कुछ इश्यूज आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको डिस्कस करूंगी. ठीक है, बट मेजरली आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर रहता है. ठीक, दिस इज ओपन कास्ट माइनिंग. ओपन कास्ट माइनिंग आपको देखने से ही क्लियर हो रहा है पिक्चर. हमारे यहाँ ऐसी माइनिंग होती है, एक बड़ा सा देयर विल बी अ माइन एंड देन जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीन्स वगैरह डाली जाएंगी और इस तरह से एक्सट्रैक्ट होगा. विद रिस्पेक्ट टू दिस यू कैन सी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव इफ आई कंपेयर दिस विद दिस टाइप ऑफ माइनिंग. विद दिस टाइप ऑफ माइनिंग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम लोग. पहले एक्सपेंसिव वाला टॉपिक कंप्लीट कर लें. कहाँ चला गया यार? ठीक है, एक्सपेंसिव. तो पहला बात तो ये एक्सपेंसिव होता है. एक्सपेंसिव क्यों? बिकॉज वी हैव आउटडेटेड टेक्नोलॉजी. आउटडेटेड टेक्नोलॉजी प्लस कोल क्वालिटी इज नॉट सुपीरियर. ठीक है, तो फिर वो क्लीनिंग प्रोसेस में भी उसमें टाइम लगता है. कोल क्वालिटी इज नॉट सुपीरियर. ठीक है, सो दिस इज एक्सपेंसिव ऑल्सो. ठीक, सेकेंड पॉइंट विद द कोल माइनिंग इज क्रेडिट. क्रेडिट
For example, in 2020 government have opened the commercial mining. Commercial mining government ने open कर दी है, but what happened that इसके पहले क्या हुआ था कि कुछ कोल माइनिंग का ऑक्शन हुआ था, ठीक है, जिसमें कि काफी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने वो पूरा का पूरा ऑक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो जितने भी लोगों ने उसमें जो इन्वेस्टमेंट किया था दे मेड ह्यूज लॉस, और उस डर के कारण अभी जब गवर्नमेंट स्टार्टेड द कमर्शियल माइनिंग का ऑक्शन तो बहुत सारे प्लेयर्स डिडंट एंटर द मार्केट, इस डर से भी, क्योंकि कभी भी क्या होता है सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोई भी ऑर्डर ऐसा उठेगी और कल को दे विल से कि यार ये आपका एनवायरनमेंट के अगेंस्ट है, या फिर जो माइनिंग ऑक्शन हुआ है वो इलीगल तरीके से हुआ है, और पूरा का पूरा वो ऑक्शन प्रोसेस जो है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर करके पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो बैकलॉग में डाल देगी, ठीक है। तो दिस वाज आल्सो मेजर इशू कि बहुत सारे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया ऑक्शन में, कुछ ने किया है और उनको अलॉट भी किया गया है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द सेकंड इशू। अच्छा हाँ, सॉरी, सेकंड इशू आई एम टॉकिंग अबाउट क्रेडिट इशू, क्रेडिट फैसिलिटी। नाउ व्हाट हैपेंड कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन 2014, the banks denied the credit facility to the private players or to any company which is participating into the auction. For example, कोई अगर माइनिंग के लिए ऑक्शन है, मान लीजिए कि जैसे विष्णु है, ठीक है, अब आपको जैसे मगर मैं सरकार हूं, मैं अगर आपको बोल रही हूं कि सर आप जो है ऑक्शन में पार्टिसिपेट करिए, ठीक, अभी कोई छोटा मोटा रकम तो है नहीं, तो ऑब्वियसली बिजनेस जब भी किया जाएगा तो अपने पैसे से बिजनेस तो कभी किया नहीं जाता है, बिजनेस हमेशा सामने वाले के पैसे से किया जाता है। दैट मीन्स कि आप मार्केट से पैसा उठाएंगे या फिर आप बैंक से पैसा उठाएंगे, ठीक है। अब ये गए बैंक को बोला भैया हमें पैसे दो, बैंक ने हाथ खड़े कर दिए, बैंक ने ये बोला कि यार अगर हम आपको अभी फाइनेंस कर देते हैं, इफ वी प्रोवाइड द क्रेडिट फैसिलिटी टू यू राइट नाउ, देन कंसिडरिंग द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट इन 2014 जो उन्होंने कैंसिल कर दिया था ऑक्शन माइनिंग को, आप तो बोल दोगे कि भैया हम दिवालिया घोषित हो गए, है ना, तो हमारा तो पैसा डूब जाएगा। तो इस वजह से ड्यू टू दिस ऑल्सो, दिस वाज ऑल्सो रीजन कि द बैंक्स डिनाइड द क्रेडिट फैसिलिटी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो मेजर इशू। थर्ड इशू इज कि टिल डेट द मेजर चंक of the mining goes to government company Coal India Limited. Coal India Limited is majorly responsible or they have the major share in the coal mining, ठीक। Because of that, और कोल इंडिया आपको अब सरकारी कंपनीज का आपको बताने की जरूरत तो मेरे ख्याल में है नहीं, ठीक। सरकारी कंपनीज में क्या होता है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, लैकलस्टर एटीट्यूड, ठीक है। इसके अलावा दे डू नॉट हैव फंड, ठीक है। तो ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज और बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ इज नॉट एबल टू you can say produce that much coal which is required by India, ठीक है। As a result, in past few years, we were dependent on the import, not only for the metallurgical coal or you can say coking coal, but also bituminous coal. ठीक है, clear? Now, third, environment. Government have taken commitment. अभी यहाँ पे देखो गवर्नमेंट ने 2 कमिटमेंट लिए हैं। पहला, गवर्नमेंट ने ये कहा कि कोल माइनिंग ऑक्शन वी विल बी स्टार्टिंग कोल माइनिंग ऑक्शन, और उसके बाद वी विल बी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोल एंड वी विल बी सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द दिस ड्राई कंपोनेंट ऑल्सो। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है कि इतना ज्यादा हम ऑक्शन करेंगे कि वी विल बी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द कोल। अभी तो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ये गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है फर्स्ट। सेकंड कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इज कि ये पढ़िए, इंडिया हैज कमिटेड इन द ग्लासगो समिट दैट वी विल बी
we will be reducing our carbon emission by 45% by 2030. We will be reducing. अब दोनों चीजें कैसे होंगी, ये यहाँ पर भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, ठीक है। तो ये भी एक मेजर इशू है बिहाइंड दिस, बिहाइंड द कार्बन माइनिंग इशू इन इंडिया, ठीक है। एनवायरमेंट हमेशा एक मेजर इशू रहा है। अभी रिसेंटली एक कुडानकुलम जो प्रोजेक्ट है तमिलनाडु में, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है वो, ठीक है। तो अभी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैज फाइल्ड एन PIL एंड उसने बोला है कि बिकॉज ऑफ कुडानकुलम प्रोजेक्ट जो नियर बाई विलेजेस हैं दैट आर वो अफेक्ट हो रहे हैं और हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। हालांकि हाईकोर्ट ने उस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल इशू ये हमेशा एक मुद्दा रहा है, ठीक। सेकंड, रिहैब अगर किसी पर्टिकुलर जगह पर यू विल बी डूइंग माइनिंग देन ऑब्वियसली द लोकल पीपल विल हैव एन इशू। अब उनको रिहैब करना प्लस उनके हेल्थ इश्यूज को मैनेज करना, दिस इज ऑल्सो एन इशू, दिस इज ऑल्सो एन प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये भी एक मेजर इशू है यहाँ पर, ठीक है। फिर है आपका ओल्ड एंड एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में हम ऑब्वियसली वी आर बैकवर्ड, ठीक है। साइंस एंड टेक की बात जब भी की जाएगी तो इंडिया इज बैकवर्ड। ऑब्वियसली हम चांद पर जा रहे हैं, मार्स पर जा रहे हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली वी आर रिलायंट, मोर रिलायंट ऑन दी अदर कंट्रीज। साइंस एंड टेक की वजह से ही आप कह सकते हो कि वी वर colonized because of our backwardness in science and tech. We were colonized, and till date we are not very sufficient, or we don't have any sufficient technology to protect us from further colonization. और अभी colonization जो हो रहा है वो डायरेक्ट colonization नहीं हो रहा है। जो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन था दैट वाज डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन। अब जो कॉलोनाइजेशन होगा या जो हो रहा है, ठीक है, इन द गाइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वो कॉलोनाइजेशन इनडायरेक्ट हो रहा है। अब वो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। डेटा ब्रीच इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनाइजेशन। आपका डेटा, आप जो भी सुबह से उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, वो सारा डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, गूगल के पास जा रहा है। गवर्नमेंट ने जो है बहुत सारे वो भी डेटा प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह लेकर के आई है गवर्नमेंट, बट सारा डेटा USA के पास है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन, ठीक है। वो आप लोग पढ़ोगे इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह में, शायद पढ़ोगे आप लोग, या जहां भी पढ़ो। अंडरग्राउंड फायर इन झरिया, हाँ ये भी एक इशू है, अंडरग्राउंड फायर, ठीक है। झरिया कोल माइन में ये भी एक न्यूज आई थी कि अंडरग्राउंड फायर भी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, क्या बता रही थी मैं यार, क्या डिस्कस कर रही थी मैं, हाँ, इनडायरेक्ट कॉलोनाइजेशन बिकॉज वी आर बैकवर्ड इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। बिकॉज ऑफ एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हमारे पास ये भी एक मेजर इशू है कोल माइनिंग में। अभी जैसे जैसे हम लोग इंडस्ट्रीज पढ़ेंगे, वाई इंडिया लैग्ड बिहाइंड द सेकेंड ग्रीन रिवोल्यूशन, सॉरी ग्रीन रिवोल्यूशन बोल रही हूँ, सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है। इंडिया स्किप्ड सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। we did well in the third industrial revolution. We are doing well in the fourth industrial revolution. Third industrial revolution is your IT and software, ठीक। Fourth that is going on AI, artificial intelligence, ठीक है। Second जो green revolution था, that was the major reason, or you can say that was the major reason for the employment. Just a second. Yes, so the second industrial revolution था, because of that, because we skipped second industrial revolution, sorry, green revolution बराबर आ रहा है, because we skipped the second industrial revolution, that is the main reason behind the highest unemployment rate in our country, ठीक है। इंडस्ट्रीज ही नहीं है,
और दैट आई गेस कुछ क्लासेस पहले मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स 15 to 20% ऑफ आवर जीडीपी एंड 60% ऑफ आवर पॉपुलेशन रिलाइंग ऑन दी एग्रीकल्चर. ठीक है. इंडस्ट्री इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 20 to 25% जीडीपी और 20 से 25% आर indulge in the industrial sector. Tertiary sector, service sector, contributing 50 to 60% of the GDP, but only 25 to 30% of the population is relying on the tertiary sector, and this is the vicious circle, and this is the reason behind the growthless. This is the reason behind the आप कह सकते हो कि employment is decreasing, growth is increasing. Jobless growth you can say. This is your jobless growth. ठीक है. jobless growth है कि जीडीपी तो बढ़ रही है हमारी, नो डाउट, बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा है. गवर्नमेंट इज गिविंग डेटा कि देयर इज डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट रेट डिमांड. There is decrease in the employment demand. मतलब लोगों को रोजगार चाहिए ही नहीं. The main reason is कि in India we have employment but we have underemployment. ठीक है, we have underemployment.